Hello dear student, this is class 7 chapter 9 soil मृदा और मिट्टी भी हम इसे बोलते हैं लोकल वे में. नाउ टुडे रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ इज सोइल फॉर्म्ड. सोइल किस प्रकार से बनती है. सोइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर, विंड एंड वाटर, और टेम्परेचर भी हम कह सकते हैं. तो इन चीज़ों के कारण जो रॉक पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स, आफ्टर द ब्रेकिंग ये मैदानी इलाके में आ जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर और विंड और वाटर कह सकते हैं हम लोग. इनके एक्शन से मैदानी इलाके में आ जाते हैं और एक लेयर सी बना लेते हैं. दैट वन इज द सोयल. इसके दो प्रकार हैं, दो स्टेप्स में होती है ये. फर्स्ट, वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस. रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस पार्टिकल्स. सेकंड, दीज स्मॉल पार्टिकल्स मिक्स विद ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉर्म्स सोयल. तो इसके बारे में कुछ अच्छे तरीके से आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें आप इसको सीख पाएंगे भी किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है. Soil and soil profile. In this chapter, let us learn about soil, composition of soil, and various properties of soil. Most of us might have experienced the fragrance of soil after the first rain. The fragrance will be so refreshing. Soil is one of the most important natural resources. It supports the growth of plants and is essential for agriculture. Soil holds the roots firmly and supplies water and nutrients to the plants or the crop. Many organisms live in the soil. For example, earthworms, ants live in the soil, and we can find many other organisms and microbes living in soil. Soil is thus an inseparable part of our life. Now let us learn about the soil profile. Soil is composed of distinct layers. A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. Now let us perform an activity to find out the arrangement of these layers of soil. Take a handful of soil from a garden and crush the clumps with your hand to powder it. Take a glass tumbler and fill 3/4 of the glass with water. Now add the soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Let the glass stand undisturbed for some time. After some time, we can observe the layers of particles of different sizes in the glass tumbler. We can find some dead rotting leaves or animal remains floating on water. The rotting dead matter in the soil is called humus. Below the humus, we can find the layer of clay, followed by the layer of sand, and at the bottom, we find gravel. The soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water, and climate. This process is called weathering. The nature of the soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. There are different layers of soil. Each layer differs in texture, color, depth, and chemical composition. These layers are referred to as horizons. We usually see the top surface of the soil. We can see the inner layers of the soil at the sides of a recently dug ditch. Soil profile can also be seen while laying the foundation of a building. Now let us know about the different horizons of the soil. The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile and provides nutrients
to growing plants. This layer is generally soft, porous, and retains more water. It is called the topsoil or the A horizon. This provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. The second layer is called as B horizon or the middle layer. This layer is rich in minerals and contains less amount of humus. This layer is generally harder and more compact. The third layer is the C horizon, which is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. Bedrock is present below the C horizon. Bedrock is hard and difficult to dig with a spade. तो हमने सीखा किस प्रकार से सोयल बनती है और किस प्रकार से सोयल प्रोफाइल होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज क्लेई सोयल यूजफुल टू क्रॉप. क्रॉप के लिए क्लेई सोयल किस प्रकार से यूजफुल है. क्लेई सोयल इज रिच इन ह्यूमस. ह्यूमस बोल सकते हैं इसको. आर वेरी फर्टाइल, सो इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक wheat एंड ग्राम. Such soil is good at retaining water. For paddy, soils rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal. For lentils and other pulses, loamy soil which drain water easily are required. बहुत सी फसलों के लिए हमें क्लेई सोयल चाहिए होती है क्योंकि ये रिच इन ह्यूमस होती है. ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर इसके अंदर मिक्सअप होता है. जब डेड एंड डिकेइंग मैटर क्लेई सोयल के अंदर मिक्सअप हो जाता है तो ये रिच विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच नीडेड बाय द प्लांट. सो क्लेई सोयल के काफ़ी सारे यूजेस भी मैंने इसमें दिखाए हैं आपको. पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं आप. और 3 तरह की सोयल होती है इसमें भी देख सकते हैं एक पिक्चर में, सैंड, लोम एंड क्लेई. इसके बारे में नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेई सोयल एंड सैंडी सोयल. फर्स्ट, क्लेई सोयल रेशियो ऑफ फाइन पार्टिकल इज हाइयर, बहुत ज़्यादा होता है इसमें. एंड सैंडी रेशियो ऑफ लार्ज पार्टिकल इज हाइयर, इसमें फाइन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, इसमें लार्ज बड़े पार्टिकल ज़्यादा होते हैं. सेकंड है सोयल रिटेन्स वाटर एंड बिकम स्टिकी एंड वेट, ये पानी को थामे रखती है जिससे ये चिपचिपी और गिल्ली रहती है. बट सैंडी सोयल लूजर पार्टिकल्स आर परमिट्स थ्रो द सोयल. लूजर पार्टिकल जितने भी हैं उनके कारण इसके अंदर से परमेट्स थ्रो द सोयल, पानी सारा रिस जाता है अंदर ही और ज़्यादा देर तक इसमें पानी टिका नहीं रहता. थर्ड पॉइंट, सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक पैडी, वीट एंड ग्राम. नेक्स्ट सैंडी में है सुटेबल फॉर वेजिटेबल, पीनट्स एंड कोकोनट कल्टीवेशन. फोर्थ, डिफ़िकल्ट टू प्लग व्हेन वेट, बहुत मुश्किल है प्लग करना जब ये गिल्ली होती है. ड्राइज अप इजली, कैन नॉट रिटेन वाटर, और ये बहुत जल्दी से सूख जाती है और पानी भी जल्दी से क्या इसमें से बह जाता है और ये पानी को होल्ड नहीं कर सकती ज़्यादा समय के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोयल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स. इसको खुद पढ़ेंगे आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें एक वीडियो में आपको दिखा दिया गया था. एक्चुअल में जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया वर्टिकली अपनी लेयर्स को काटते हैं, सोयल को देखते हैं साइड में से, साइड व्यू में से, तो हमें दिखाई देती है इसकी काफ़ी सारी लेयर्स, जिसमें सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है दैट वन इज़ रिच विद ह्यूमस, जो कि बहुत अच्छी रहती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए. नेक्स्ट है जो वो सब सोयल हम कह सकते हैं जिसको टॉप सोयल मिनरल्स पार्टिकल्स मिक्स विद ऑर्गेनिक मेटल, ए होरिजन उसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट है सब सोयल कंपाउंड्स
ड्रेनिंग फ्रॉम अबोव एक्यूमुलेट बी होरिजन, यानी कि कुछ कंपाउंड्स जो ऊपर से ड्रेन यानी कि पानी के साथ नीचे की तरफ बह जाते हैं, दैट वो उसमें रिटेन रहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड सी होरिजन, पेरेंट मटेरियल पार्टली वेदर्ड रॉक, इसमें कुछ वेदर्ड रॉक यानी कि कुछ पार्टिकल और कुछ बड़े पैबल ग्रेबल जैसे स्मॉल कह सकते हैं, स्मॉल कंकर पत्थर इसमें होते हैं जो क्या है पानी को नीचे आने नहीं देते। नेक्स्ट लास्ट है बेड रॉक और आर होरिजन इसको हम बोलते हैं। बिलो द दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद ए स्पैड, इसको खोदना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, पत्थरों से बनी हुई है। और दीज रॉक्स आर नॉन पोरस रॉक्स, यानी कि इनके अंदर से कोई पानी की एक बूंद भी इसके नीचे नहीं जाएगी। हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है इस लेयर से ऊपर ऊपर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजिया कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ प्रिक्लेशन। सी ऑब्जर्व दैट इट took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. Rate of percolation का एक फार्मूला है, that one is the amount of water in ml upon में percolation time in minutes. तो 200 ml इसका टोटल वाटर था जो प्रिकुलोट हुआ है और 40 मिनट्स में हुआ है, तो इसको हम डिवाइड अप कर देंगे तो क्या आएगा 5 ml पर मिनट वाटर प्रिकुलेट होता है। दिस इज द रेट ऑफ प्रिकुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ सोयल पोल्यूशन एंड सोयल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। आंसर नंबर 9, प्रिवेंशन ऑफ सोयल पोल्यूशन, यूज मैन्यूर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये क्या है स्पेशल न्यूट्रिएंट से रिच होने के कारण सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट फसल को दे पाते हैं और इनमें अदर्स केमिकल्स जो होते हैं वो धरती को बंजर यानी कि अनुपजाऊ यानी कि इनफर्टाइल बनाते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीज। इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले ट्रीट करो, उसको साफ करो अच्छी तरह से, फिर उसको रिलीज करें हम। थर्ड, अवॉइड यूज ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक और दे शुड नॉट गेट मिक्सड इन द सॉइल। ये मिले नहीं होने चाहिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ, अभी एक वीडियो भी बनाई है मैंने, दिखाता हूँ आपको। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, एफोरेस्टेशन करो जितना भी उसके लार्ज स्केल पे प्लांटिंग ट्री करें, कट डाउन ना करें। लार्ज स्केल प्लांटिंग इन प्लेस ऑफ कट डाउन फॉरेस्ट, जहाँ कट चुके हैं वहाँ पर प्लांटिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज की, तो हमारी सोयल भी प्योर होगी और पोल्यूशन भी सही होगा। अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रास लैंड्स, और जितने भी ज़्यादा उसके जो ओवर ग्रेजिंग होती है, जो जानवर चरते रहते हैं, आवारा पालतू जो भी जानवर हैं सभी चरने के लिए हम छोड़ देते हैं, तो उनको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ग्रास जो लैंड है वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है फायरमली और होल्ड रखती है एक जगह पे, वो बहने नहीं देती। नेक्स्ट है यूज ऑफ स्टेप फार्मिंग इन हिली रीजन्स, और हिली रीजन्स में भी स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ भी मिट्टी को बांधे रखा जा सके। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे अब। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए सोयल रीजन। सोयल रीजन एक्चुअल में है क्या, आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ऊपर की लेयर जो मिट्टी की है वो पानी के साथ बह गई है, तो इसी प्रकार से द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। Plant roots firmly bind the soil. In the absence of plant, soil become loose, so it can be moved by wind or flowing water. Erosion of soil is more severe in area of little or no surface vegetation, such as desert or bare lands. So, cutting of trees and deforestation should be prevented and effort शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। जितना भी ज़्यादा उसके जोर ग्रीन एरिया बनाने में करना चाहिए हमें। और आपको अच्छी तरह से पता है हमारे पूजनीय पिताजी हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी कि उनके बर्थडे पे हम लोग बहुत सारे प्लांटिंग ट्रीज़ करते हैं। तो
तो वो उनको अच्छी तरह से पता है कि हमारी अर्थ की कंडीशन अब क्या है और आने वाले टाइम में क्या हो जाएगी। उससे हमारी नेक्स्ट पीढ़ियों को बचाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन्स को बचाने के लिए प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज करवाते हैं, जिससे कि हमारी सोयल बची रहे, सोयल एरोजन ना हो, वेजिटेशन बना रहे अर्थ पे, एयर पोल्यूशन ख़त्म होता चला जाए, वेजिटेशन से ही ख़त्म होता है वो भी। तो इसलिए हमेशा हमें ट्रीज़ लगाते रहना चाहिए। नेक्स्ट एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, वो वीडियो देखें और जज करें। Have you ever heard about soil erosion? The upper layer of soil is made up of fine soil particles. It is rich in minerals and has humus. Humus makes the soil fertile. Sometimes heavy rains, running water, and wind remove the top layer of the soil. This is known as soil erosion. Let us perform some activities to understand how does soil erosion take place in nature. Activity 1. Soil erosion by water. Make a model of hills and a river valley by making heaps of soil at one place. Now pour water over it. You will see that as water runs down, it takes away top layers of soil along with it and deposits it in the riverbed. This is known as silting. In this way, the fertile soil is lost and the level of riverbed rises, making them more prone to floods. Activity 2. Soil erosion by air. Place some sand at one place on the table. Now, blow air over the sand. Observe what happens. The sand is blown off and gets deposited at some other place. This blowing away of top layers of soil is called soil erosion. How can we prevent soil erosion? Let us perform one more activity. Take 2 wooden boxes. Fill both of them with equal amount of soil. In one box, fix some plants like grass with roots. Tilt both the boxes. Now, pour equal amount of water in both the boxes. Note what happens. You will see that only water comes out from the box in which plants are fixed. From the box in which plants are not fixed, some soil along with water is drained out. This shows that plants help prevent the soil from flowing out. The plants act as soil binders. Thus, they are very important in preventing soil erosion. बेटा सोइल एरोजन को होने से बचाने के लिए हमें प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री ही करने होते हैं और वेजिटेशन, ओवरग्रेजिंग बिल्कुल स्टॉप करनी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज सोयल पोल्यूट, किस प्रकार से सोयल पोल्यूशन होता है। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सोयल, सोयल को पोल्यूट करते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिव इन द सोयल, सोयल को अंदर जो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानवर जो रहते हैं वो भी मर जाते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ ए डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides. Pesticides आपको पता ही होगा, अभी खेतों में डाला जाता है पेस्ट को मारने के लिए। Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. Soil में रिलीज़ करने से पहले केमिकल्स को हमेशा ट्रीटेड करना चाहिए, उनको उनकी इफेक्टिवनेस ख़त्म कर देनी चाहिए। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज, और जितना भी कम हो सके दवाइयों का यूज़ हम खेतों में कम से कम करें, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हम कम से कम करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन सोयल। आंसर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन सोयल, मास ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सोयल अपॉन मास ऑफ सोयल विद मॉइस्चर मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार से अगर हम ये दोनों की दोनों कैलकुलेशंस निकाली हुई यहाँ रख दें, पुट करें, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन सोयल आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आई होप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लॉयनहार्ट कीन लर्नर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स।